So, good morning, students, and good morning to one and all present. I welcome you all to the seventh session of Placement Preparation Program and the second part of Body Language session that we are conducting as part of it. And the title, as I gave, is Hand of God. This phrase has been taken from the famous or infamous, I would say, the goal that was scored by Maradona in the World Cup that led Argentina to win the World Cups. And again, today the topic that we are going to discuss is also one of the most important topics as far as body language is concerned, because hand, or in specific your palm, has a great role to play in your body language. It not only describes your emotion to the person who are watching you, it also helps you understand the emotion or the intention of the person who is interacting or coming in contact with you for the first time. So it's very important for us to know the significance or the importance of palm as far as body language is concerned. Most of us come across this in one form or the other in your daily life, in daily forms, but might be we are not able to decode, we are not able to decipher it and understand what it actually means. So today I would try to see that you guys come to know about the basics of palm reading. No, I would not use the word palm reading. Palm reading is a totally different thing. Understanding the significance of different positions of palm as well as handshakes. These are the two topics that we are going to take today, and I have tried to take some specific videos. I have tried to make some videos which will make the things very clear to you guys. So please stay tuned till the end. आखिर तक देखिएगा. It will not be a very long session, as every time it's around just half an hour for our session, and then if you are having any questions we'll take it, and then that's it. So please ensure that you stay there till the end so that we can cover the topics very well. Okay, so we'll start with the presentation, that is body language, or you can say hand of God. Okay, so now when you are saying about body language, the palm plays a very important or significant role in the body language portion, or you can say, because palm is having very great importance. The first thing that a person notices whenever you are showing up to them is your palm. So how you show it, your arms, its movement, its gestures, how you present it, that's very important. To begin with, we'll just take a normal example. आप लोगों में से कई लोग हैं जो सपोज कॉलेज का फर्स्ट डे होता है, तो आप लोग कॉलेज में जाते हैं, और माइट बी फॉर प्रोफेशनल्स, दे गो टू देयर ऑर्गेनाइजेशंस, माइट बी आफ्टर जॉइनिंग और आफ्टर अ ट्रांसफर और अ न्यू जॉब, दे गेट इनटू द जॉब. सो सिमिलर वाज द स्टोरी ऑफ रघु, अ नॉर्मल गाय. He was having a very well built physique, fair looking, tall, handsome guy, and he was very good in his technical part. He had a very good idea of his job, and it was the first day on his job. So generally हमको पता है कि तो आप लोग पहली बार जब भी किसी से मिलते हैं, generally we see this in offices as well as in professional cultures, we go and we try to greet the people around. बिजनेस मीटिंग्स में जनरली हम लोग जाते हैं तो पहले ही वी जस्ट गिव हैंड शेक एंड वी मीट द पीपल. ओके, सो रघु ऑल्सो डिड द सेम. All the people in the office just came in and he had a handshake with them. The problem that actually happened was because of physique, because of his build, because of his nature, might be, he was habituated of giving a very firm and hard handshake. For some guys it was like okay, but some people who could not take it, they felt really pain. For some women employees, they even just felt so annoyed that they actually pulled out their hands. So this gives us the importance of a simple handshake. आप लोग एक जॉब पे जाते हैं फर्स्ट टाइम, आपका बिल्ड कैसा भी हो, आपका फिजिक कैसा भी हो, आपका जॉब का बैकग्राउंड कैसा भी हो, आपका टेक्निकल करियर कैसा भी हो, रिकॉर्ड कैसा भी हो, इफ़ यू कैन नॉट मेक अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन, इफ़ यू कैन नॉट मेक अ गुड फर्स्ट एंट्री, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू हैव विथ यू इज़ आई वुड से अ वेस्ट. सो बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट व्हाट हैपेंड विद दिस गाइज, उसके बाद से लोग कभी भी उसके साथ एक अच्छा हैंडशेक नहीं करते थे. Especially the women, they would never do it with him. Or
sometimes in organizations do happen that most of the employees or senior employees or executive or management comprised of women, as a result of which once you get such an image in your organization, इस image को बदलना और इस image के साथ आगे बढ़ना, it's relatively very difficult. Okay, so how to give a handshake? आज तक हम लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा that giving a handshake is also this relevant. Just try to go back to your lives. आप लोगों ने भी कभी ना कभी अपने लाइफ में से लोगों को देखा होगा जो sometimes they give literally a bone crushing handshake. आपका हाथ तोड़ दें उतना हार्ड वो लोग हैंड क्रश करते हैं, बिकॉज दे सीम दैट इट्स आर्म रेसल, पंजा लड़ाने का खेल है कि जिसमें आप सामने वाले हाथ ज़्यादा दबा दोगे तो आप जीत जाओगे एंड माइट बी यू विल गेट सम प्राइज और समथिंग. एक्चुअली इट्स अदर वे अराउंड. यू गिव वेरी बैड इंप्रेशन. एग्जैक्टली इसका क्या एक इम्प्रेशन है या फिर इससे सामने वाले के मन में आपका क्या इंप्रेशन पड़ता है, ऑल दोज थिंग्स विल टेक अप इन द सब्सिक्वेंट सेशंस व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग स्पेसिफिकली अबाउट द हैंडशेक्स. बट दिस इज व्हाट हैपेंस. आप लोगों के साथ भी कई बार ये हो सकता है कि फर्स्ट टाइम किसी से मिले, किसी से बात किए या फिर किसी से इंटरेक्ट किए बिना ही आपका कोई भी एक एक्शन ऐसा हो जाता है विच विल रूइन योर impression or might be ruin your relationship with that person. Handshake is one of the most common things, one of the most common such things that happen in your professional lives. Okay, so this is very important for us. When you are talking about palm, हमारे हाथ में, that is your palm as well as brain has the maximum number of connections as far as any other body organ is concerned. इसीलिए कभी भी कुछ भी होता है in reflex action, the first thing that you move is your hand. कुछ भी होता है सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग? You immediately take your hand. आपकी तरफ कुछ चीज़ आ रही है, आप अपना हाथ बीच में रख देते हैं. आप नीचे गिर रहे हैं, आप अपना हाथ रख देते हैं. कोई आपको मारने आ रहा है, आपका हाथ बीच में आ जाता है. Why in each and every situation the hand comes in between? Because the connection between the brain and your arms is maximum as compared to any other organ. सबसे ज़्यादा connection इन दोनों के बीच में. Okay, now when I am talking about arms, we are talking today specifically about the palm. जो आपकी हथेली उसकी बात कर रहे हैं हम लोग आज. So open palm, that is जब आप अपना हाथ खोल के इस तरह से रखते हैं, this indicates honesty, elegance, submission. आप अपने लाइफ में रिकलेक्ट कीजिए डिफरेंट सिचुएशंस वेयर यू हैव सीन ओपन पाम्स. ओपन पाम्स कहाँ दिखता है? कई लोग जब कोर्ट में जब बोलते हैं कि मैं जो भी कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा, दे आर हैविंग देयर पाम्स ओपन. उनके हाथ खुले होते हैं. गीता पे या फिर कुरान पे या बाइबल पे वो लोग हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा. हाथ कैसा होता है उनका? देयर हैंड इज ओपन. इट इंडिकेट्स ऑनेस्टी. कोई भी ओथ टेकिंग सेरेमनी है, हम लोग स्कूल्स के अंदर डिफरेंट फंक्शंस में, स्पोर्ट्स डे में हम लोग ओथ लेते हैं कि मैं इस एक्टिविटी को हॉनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ करूँगा. वी जनरली टेक द ओथ. हाउ डू वी टेक दैट? वी टेक विद एन आउटस्ट्रेच्ड आर्म. हमारा हाथ जो होता है वो सीधा ओपन. ओके, सिमिलरली इन वेरियस अदर सिचुएशंस इन योर लाइफ, in various other situations we use this same technique of open hands. National anthems गाते हैं. Generally in our national anthem we don't have this trend. In India we don't have this trend of keeping our hands on the heart, open palms on your heart. But if you see this ISL as well as some foreign leagues, in that case you can see when the national anthem is going on, the players they keep their hands open palm on their heart. This indicates their elegance. This indicates their submission, sincerity. Almost कोई भी चीज़ देख लीजिए आप, you will come to know that this is related to such an activity. If you have even see in last session also मैंने बताया था कि humans are social animals. जो हमारे instincts हैं, जो हमारा basic behavior होता है, we generally get these from animals only. आप apes की बात कर लीजिए, monkeys की बात कर लीजिए, they are actually our ancestors. So many qualities that we have or many things that we have, it is in common with them also. If you ever आप लोग घर पे छोटा, suppose if you are having a dog at your home, if you are having a pet at your home, आप जब भी उसको if you cuddle it, आप जब भी उसको खिलाते हैं, at that time whenever it's playing with you, it will just lie down on its back and it will expose your throat, expose its throat to you. Okay, so जब भी कुत्ते को आप suppose खिला रहे हैं उस टाइम पे वो ज़मीन पे उल्टा लेट के he just tries to play with you and he is submitting to you. At that time he is exposing his throat. उसका जो गला है वो आपको दिखता है. This is a sign of submission. This is a sign of giving authority as far as dogs are concerned. And what do humans do?
दे शो देयर पाम्स. ओके, मूवीज के अंदर इफ यू हैव सीन व्हेन द पुलिस catches some thieves or might be some robbers or anyone, what do they say? हाथ ऊपर करो. Why? They just ask them to raise their arms so that they show their submission. They don't have anything in with them, they don't have any arms, and they are submitting to the police. This thing means. So that is why this significance of palms we need to take into consideration, because it's actually very important in daily life. As gradually we will go for all these things, we will come to know that why and where all we actually come or encounter this palm situations. And then gradually as we start reading this, we will come to know, okay, along with the words we will gradually understand how to read the body language, try to get these things in sync, and then our intuition works. Okay, might be this guy is honest or might be this guy is not honest. My efforts are just to make you understand, आप लोग समझ पाए कि जो पाम के जेस्चर्स होते हैं उसको कैसे रीड करना है. और कई बार हम लोग जो पाम से जेस्चर्स या फिर बॉडी लैंग्वेज प्रोजेक्ट करते हैं उससे सामने वाला हमारे बारे में क्या पढ़ रहा है. वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर वी एक्चुअली प्रोजेक्टिंग. हम सामने वाले को क्या दिखा रहे हैं अननोइंगली अबाउट अस, so that we can try to project ourselves better. Okay, significance. बॉडी लैंग्वेज के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं, हमें वी ऑलवेज शुड ट्राई टू फाइंड आउट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स फ्रॉम आवर ओन लाइफ जो हमने देखा हो हमारे आसपास में, वेयर वी एक्चुअली फील दैट यस ऐसा होता है. द बेस्ट एग्जांपल दैट आई ऑलवेज टेक इज़ द केस ऑफ चिल्ड्रन. छोटे बच्चों की बात करो, इट इज़ वेरी ईजी बिकॉज देयर बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी एविडेंट. वो लोग बात कम करते हैं लेकिन बॉडी लैंग्वेज इज़ द यू कैन से बिगेस्ट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट दे यूज़. जब भी बच्चे झूठ बोलते हैं, अगर आपने देखा हो तो वो अपने हाथ जो होते हैं अपने बॉडी के पीछे ले लेते हैं, या फिर जो पाम्स होते हैं उससे अपने हाथ मुंह को कवर कर लेते हैं. दैट दे आर नॉट एक्सपोजिंग देयर पाम. वो अपने पाम को कंसील करते हैं, वो छुपा लेते हैं हाथों को. क्यों? बिकॉज दिस इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट. एज आई सेड, वील जस्ट टॉक, ये प्रिमिटिव टाइम से चला आ रहा है. एक्सपोजिंग ऑफ आर्म्स इज रिलेटेड टू ओपननेस, ऑनेस्टी. इसलिए बच्चे जब बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट उनको कोई सिखाता नहीं है, बाय डिफॉल्ट उनके हाथ जो होते हैं पीछे चले जाते हैं. आप नोटिस कीजिए आपके फैमिली में, सराउंडिंग्स में जहाँ पे भी बच्चे होते हैं, समटाइम्स व्हेन दे ट्राई टू लाई दे विल डू दिस. दे विल स्टील देयर आइज. आंखें चुराएंगे आपसे. अबाउट द आइज विल टेक अप इन द नेक्स्ट सेशन. बट रिगार्डिंग हैंड्स देखिएगा, आप वो कभी भी अपना हाथ दिखा के बात नहीं करेंगे. दे विल नॉट शो यू देयर palm, I mean the palm, not the hands. Okay. Salesmen generally, whenever they are negotiating or trying to convince a customer to buy something, जब भी salesman आपके पास आके आपको कोई चीज़ बेचने की कोशिश कर रहे हैं और जब आप उसको बोल रहे हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, they try to notice the position of your palm. आप नोट कीजिए, कई बार जब भी सपोज कोई बंदा बोलता है सॉरी आई डोंट हैव एनीथिंग, जब आप अपने हाथ एक्सपोज करके बोल देते, the other person tends to believe that yes you are honest. और जब सब उस सेल्समैन को लगता है कि नहीं ये जो बोल रहा है और उसकी बॉडी लैंग्वेज बोथ आर इन सिंक, बोथ आर गोइंग टुगेदर, इट मीन्स दैट दे विल बिलीव यू. अदरवाइज अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सिंक नहीं कर रही, आप उसके साथ बात करते वक्त अपने हाथ छुपा रहे हैं, अपने हाथ को जेब में डाल देते हैं, देन द सेल्समैन विल अंडरस्टैंड दैट नो दिस गाय इज लाइंग. अगर थोड़ा मैं इसको प्रेस करूँ तो जेन्युइनली शायद ये बंदा जो है परचेज कर लेगा. This is also very important. As a customer, we can also use this body language in the salesman. हम लोग जब सेल्समैन से या शॉप में या किसी बिजनेसमैन से कुछ नेगोशिएट कर रहे हैं, इफ़ वी कैन ट्राई टू रीड देयर बॉडी लैंग्वेज, बात करते वक्त देखिएगा मैक्सिमम प्रोफेशनल लोग, बिजनेस पीपल, पॉलिटिशियंस, टुडे विल सी द पिक्चर्स ऑफ सम पॉलिटिशियंस. बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एविडेंट. पता चल जाता है आप लोगों को कि वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं और एक्चुअली क्या बता रहे हैं वो लोग. कॉन आर्टिस्ट एंड प्रोफेशनल लायर्स, आई वुड प्रोफेशनल लायर्स का कोई एग्जांपल मैं नहीं दूंगा, लेकिन जिनके प्रोफेशन में माइट बी झूठ बोलना आता है, माइट बी इन सम बिजनेस यू नीड टू टेल लाई, माइट बी एज अ पार्ट ऑफ व्हेन यू आर एक्टिंग एज अ लॉयर, एंड माइट बी यू नीड टू टेक अप सम केसेस, माइट बी जब आप कोर्ट में कोई गवाही दे रहे हैं उस टाइम पे आपको झूठ बोलना है, माइट बी एज अ स्टूडेंट. I won't say a professional liar, but in different professions where might be you need to lie.
दीज पीपल प्रैक्टिस दिस. जैसे मैंने आज आपको बता दिया कि पाम ओपन होने से सामने वाले का आप पे भरोसा जो होता है थोड़ा बढ़ जाता है. अगली बार क्या करेंगे आप लोग, जब भी फैकल्टीज टीचर्स कुछ भी पूछेंगे आपसे तो आप अपना हाथ खोल के बोलेंगे टीचर मुझे नहीं पता, सर मेरी बुक खो गई, सर मैंने कॉपी नहीं किया. यू विल ट्राई टू शो केस एज इफ यू आर हॉनेस्ट एंड यू विल टेल अ लाई. जो कॉन आर्टिस्ट, कॉन मतलब जो चीटर्स या फिर जो फ्रॉड लोग होते हैं वो लोग, और प्रोफेशनल लायर्स, दिस पीपल प्रैक्टिस दिस थिंग. बट आई टेल यू इट्स नॉट दैट ईजी, बिकॉज इन द लास्ट सेशन ऑल्सो वी डिस्कस्ड बॉडी लैंग्वेज एक इंडिविजुअल हाथ के ऊपर या आँख के ऊपर या पैर के जेस्चर से, उंगलियों से हम लोग कंक्लूड नहीं करते. इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ जेस्चर्स. बॉडी लैंग्वेज आपके ओवरऑल बॉडी से काफ़ी सारे छोटे छोटे सिग्नल्स मिलते हैं. बेस्ड ऑन कंपाइलिंग ऑल दोज थिंग्स वी ट्राई टू कम टू अ कंक्लूजन. ओके, जब हम लोग ऐसे कंक्लूजन पे आते हैं सारी चीज़ों को कंक्लूड करके, दैट जनरली इज अ हॉनेस्ट एंड यू कैन से ऑलमोस्ट कॉन्क्रीट एविडेंस दैट ओके ये सही बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है. ओके, ओपन पाम जो होता है इट reduces, it diminishes the tendency to lie, झूठ बोलने का, because as I said it's a cause and effect. अगर मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जब सच बोलेंगे उस टाइम पे आपका हाथ जनरली जो होता है इफ इट्स ओपन, सो इट्स द अदर वे अराउंड ऑल्सो. ए इम्प्लाइज बी देन बी ऑल्सो इम्प्लाइज ए. अगर आपका हाथ खुला रहेगा जनरली झूठ बोलने की टेंडेंसी जो होती है कम हो जाती है. समटाइम्स दिस थिंग कम्स इनटू पिक्चर. आप लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा. जब भी कोई आदमी सपोज बोल रहा है कि मुझे नहीं पता, आप लोग बोलने की कोशिश कीजिए. यू जस्ट ट्राई टू सी कि सपोज आप लोग जब बोलते हैं कि आई एम इनोसेंट, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पैसे नहीं चुराए, यू जस्ट ट्राई टू सी, एक्चुअली आपका हाथ जो है खुद ही खुल जाएगा. योर हैंड्स विल ओपन अप ऑटोमेटिकली. And this is what we need to understand. And when you are talking with such honesty, open hand gestures, your opponents are also forced to be honest. It's like you are honest, as a result of which your body language is giving some strong signals to them so that they also gradually try to become honest. And it happens. आप लोग आज से ये चीज़ को ट्राई कीजिए. यू ग्रेजुअली ट्राई टू डू दिस थिंग एंड देन यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट यस दिस थिंग वर्क्स. ट्राई टू प्रैक्टिस द ओपन हैंड जेस्चर. हाथ खुले रख के बात कीजिए. ट्राई टू कीप योर पाम ओपन. आप लोगों को खुद लगेगा ग्रेजुअली यू आर, कभी कभी आप कुछ बोलते बोलते आपके हाथ जो है खुद ही बंद हो जाएंगे. दिस इज बिकॉज माइट बी यू आर लाइंग और यू आर नॉट श्योर और यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, समथिंग लाइक दैट. बट ग्रेजुअली एज यू प्रैक्टिस इट आप लोगों को ये चीज़ की आदत पड़ जाएगी एंड इट विल गिव यू अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ अदर्स. ये पाम अप जो पोस्चर है, व्हाट डज दिस मीन पाम अप? पाम अप का मतलब होता है कि आपकी हथेली जो होती है ऊपर होती है. यू कीप दिस पाम अप साइड. जो हाथ है आपका खुला है. ये जेस्चर आपने जनरली कहाँ देखा है? जो भिखारी लोग होते हैं वो भीख मांगते कैसे मांगते हैं? दिस इज हाउ दे आस्क. दे आर प्लीडिंग, आपसे कुछ मांग रहे हैं. दिस इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड. यू आर आस्किंग समथिंग. किसी से कुछ दया मांग रहे हैं, किसी से कुछ कोई उपकार मांग रहे हैं आप. यू आर सबमिटिंग टू देम. चलो बाकी सब भूल जाओ. यू ऑल आर स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स इन द बेस्ट ऑफ योर एज. हाउ डू यू प्रपोज अ गर्ल? शाहरुख खान या फिर सपोज कोई भी एक्टर को ले लीजिए आप लोग. हाउ डू दे इन द, अभी आजकल की मूवीज में जनरली ऐसा कम होता है, बट इन द ओल्ड मूवीज माइट बी अराउंड 10 years बैक मूवीज में हाउ डू दे प्रपोज? आजकल भी कुछ मूवीज में होता है, हीरो होता है, घुटने पे बैठ जाता है और एंड दे जस्ट टेक देयर हैंड्स. एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पाम इन दैट केस? पाम की पोजीशन क्या होती है उस सिचुएशन के अंदर? इट इज ओपन पाम. तुम मांग रहे हो, राइट? यू आर आस्किंग दैट गर्ल दैट ओके विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, विल यू बी माई वाइफ, वॉट एवर इट इज. आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं. इट्स अ नॉन थ्रेटनिंग जेस्चर. आप उसको डरा नहीं रहे, यू आर रिक्वेस्टिंग, राइट? दिस इज वॉट हैपन्स. ग्रेजुअली जब आप लोग ये चीज़ को अपने डेली लाइफ के अंदर यू ट्राई टू सी दिस, इट बिकम्स मोर एंड मोर क्लियर.
ओके, दैट पाम अप है तो जनरली ये सारी चीज़ें होती है. ओके, इसका उल्टा पाम डाउन, उल्टा जो होता है, एट दैट टाइम व्हेन वी टॉक ऑफ पाम डाउन, व्हाट डज दिस पाम डाउन इंडिकेट? पाम डाउन इंडिकेट्स अथॉरिटी. तुम्हारा हाथ किसी के ऊपर है. जनरली इन इंडिया वी हैव अ कल्चर ऑफ टचिंग द फीट ऑफ आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स. आप लोग अपने पेरेंट्स के या फिर एल्डर्स के पाँव छूते हैं. उस टाइम पे वो लोग आपको आशीर्वाद देते हैं. सो हैव यू सीन द पोजीशन ऑफ देयर पाम? आपने देखा है कभी इस चीज़ को? दे आर गिविंग यू समथिंग, राइट? और देने का मतलब है उसका हाथ आपके ऊपर है. दे आर अबाउ यू. दिस शोज अथॉरिटी. बिलीव मी गाइस, आप लोग जितना इसके बारे में प्रैक्टिकली सोचेंगे, यू विल कम टू नो दैट यस, दिस इज अ रियल बेसिक साइंस जो हम लोग एक्चुअली कभी पढ़ते नहीं हैं, लेकिन इट्स दैट रिलेवेंट. उतना इंपॉर्टेंट है ये. कोई भी चीज आप फर्स्ट वी टुक द एग्जाम्पल ऑफ ओपन पाम और पाम अप, बट नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ पाम डाउन. भिखारी जब भीख मांगता है तो वो कुछ मांग रहा है एंड हिज पाम इज ओपन. आप जब ऊपर से कुछ दे रहे हैं, योर पाम इज ऑन द टॉप एंड इट्स फेसिंग डाउन. सो यू हैव द अथॉरिटी एंड द अदर पर्सन हु इज हैविंग हिज पाम अप इज आस्किंग समथिंग. आपसे कुछ मांग रहा है, ही इज रिक्वेस्टिंग, वो प्लीड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, और आप जो है अथॉरिटी है आपके पास तो आप उसको दे रहे हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ पाम अप एंड पाम डाउन. लेकिन भिखारी के साथ कर दिया, अच्छी बात है, ठीक है. लेकिन अगर आप अपने दोस्त के साथ इस तरह का कभी कुछ बिहेवियर कर देते हैं इन प्रोफेशनल लाइफ, इफ़ यू डू दिस विथ योर कोलीग्स, दिस माइट नॉट वर्क. शायद ये चीज़ आपके फेवर में वर्क ना करे. दिस माइट लीड टू सम इश्यूज इन द रिलेशनशिप. नाजी सैल्यूट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन इन द हिस्ट्री, the biggest dictator probably I would say the history has ever seen, Adolf Hitler. Have you seen his Nazi salute? We have a picture of that, we'll see. It was a symbol of power and tyranny. लोग डरते थे उससे. और सैल्यूट इस तरह से होता था कि हाथ, it used to remain on the top, in the palm was facing down. palm जो है उसका डायरेक्शन जो है डाउन रहता है. It indicates कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है. नाजी सैल्यूट वाज सिंबल ऑफ पावर एंड टायरनी. तीसरा होता है सबसे खतरनाक, पाम पॉइंटेड. जो आप लोग किसी को फिंगर पॉइंट करते हैं. ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अनोइंग जेस्चर्स इन द वर्ल्ड. प्रोबेबली आपको ये चीज़ कभी हो सके तो किसी के सामने नहीं करना चाहिए. गुस्से में लोग यूज़ करते हैं ये चीज़, बट इट इज़ रिकमेंडेड अनलेस एंड अनटिल द पर्सन यू आर यूजिंग इज़ योर सर्वेंट, या माइट बी आपसे बहुत नीचे की कैटेगरी का है, या फिर अदर. इफ़ इट्स 100% सेफ देन ओनली यू शुड यूज़ इट. अदरवाइज इन प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स इट कैन बी डिजास्टर्स. बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है. ओके, बिकॉज दिस इंडिकेट्स सबमिशन, दिस इंडिकेट्स ऑर्डर. आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, उस तरह से बात होती है जब व्हेन आई एम पॉइंटिंग अ फिंगर ऑन समवन. ओके, just like to give you some example, an example from the football field. As referees, we officiate the matches, we come in contact with the players, we issue them cards for any fouls or misconducts that they are doing. Sometimes the tempo of the match goes so high that we might also shout at players, we might get angry at the players, but we are instructed time and again to ensure that you never point finger at any particular player. You know why? Because the players are coming from different backgrounds, different cultures. हर एक कल्चर के अंदर हर एक बॉडी लैंग्वेज या फिर हर एक जेस्टिकेंस अलग होता है. दैट इज इन मलेशिया एंड फिलीपींस दे कंसिडर दिस टू बी इंसल्टिंग. आप किसी इंसान के सामने उंगली अगर आप पॉइंट करते हैं, इट मीन्स यू आर इंसल्टिंग देम. क्योंकि वहाँ पे जानवरों की तरफ तुम लोग पॉइंट करते हो उंगलियों को. देयर यू डू नॉट यूज योर फिंगर टू पॉइंट टूवर्ड्स एनी ह्यूमन. आप कर रहे हैं, इट्स एन इंसल्ट. दे माइट sue you in court. आप पे माइट भी केस कर सकते हैं वो लोग. सो इन फुटबॉल वी आर इंस्ट्रक्टेड नेवर टू पॉइंट फिंगर बिकॉज ऑल ऑफ देम आर प्रोफेशनल्स. माइट भी उन लोगों ने फाउल किया है तो वॉट एवर इज द सैंक्शन वी कैन डू, बट वी कैन नॉट पॉइंट फिंगर्स एट देम. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. प्लीज अंडरस्टैंड.
सो ये जो थर्ड पोर्शन है, द थर्ड पार्ट दैट इज क्लोज palm एंड पॉइंटेड फिंगर, प्लीज नेवर एवर डू दिस इन योर लाइफ। ओके, ये चीज आपको खास याद रखना है कि आप ये कभी ना करें। से दिस, no harsh feelings for anyone, no personal comments or no political statements, nothing, but these are two photos that you directly find from Google. आप लोग just Nazi salutes type कीजिए and you will get this image, the image of the world's biggest dictator, and if you just put it as palm closed pointed finger, you get to see the image of Donald Trump, the US president. Right now he is suffering through COVID, so let's all pray for his good health and speedy recovery. But ये इमेज देख के कुछ चीज़ें आप अपने मन में समझ सकते हैं कि अभी अगर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा दूँ in which might be Donald Trump is giving a speech at any XYZ place, if I mute the video and if I just show you his body language based on his hand gestures, palm gestures, you will come to know a lot of things. और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग palm gestures को, hand expressions को, body language को रीड करना धीरे धीरे सीखें। उनके पर्सनैलिटी के बारे में, उनके नेचर के बारे में, उनके एटीट्यूड के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। अगेन गाइज, वन मोर थिंग, ये सारी चीज़ों से हमें बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन एज आई यूज्ड अर्लियर, कॉन आर्टिस्ट एज वेल एज प्रोफेशनल लायर्स के अंदर माइट बी वन ऑफ द बिगेस्ट कैटेगरी इज द पीपल हु आर इन पॉलिटिक्स। दे ट्राई टू डू दिस अ लॉट। वो लोग ये चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। सो वी नीड टू इंश्योर कि हम लोग वी डोंट गेट इन देयर फॉल्स, you can say makeup or might be false show off of their body language. Politicians के body language अगर आप देखें, it's very caring, बहुत केयर करते हैं, और their hand gestures and all these things, because अगर as a student I can teach you all these things, they have their individual body language trainers with them, believe me, उनके पास उनके individual body language trainers हैं। सो आप यहाँ पे ओपन पाम देखना चाहते हैं तो वो लोग हमेशा आपसे झुक के एकदम ओपन पाम से, विनम्रता से ही बात करेंगे, लेकिन वोट मिल जाए तब तक, देन इट्स देयर गेम। तब तक बॉल आपके कोर्ट में था, वोट मिल गया, नोट मिल गया, सीट मिल गई, उसके बाद द बॉल इज इन देयर कोर्ट। ओके, सो वी नीड टू ग्रेजुअली अंडरस्टैंड एंड रीड इट्स सिग्निफिकेंस। ओके, नाउ रिगार्डिंग हैंडशेक गाइज, हमको लगता है कि हैंडशेक इज समथिंग दैट हैज़ कम माइट बी इन लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले थोड़े सालों में आया है, एंड दिस वाज समथिंग पार्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर। इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट इन कोरोना टाइम्स वी से दैट ओके, हैंडशेक इज ऑन द मोस्ट बैड थिंग दैट वी शुड नॉट डू। उसको बाहर करके रखो, अभी नमस्ते पे ही बात करो। ओके, नमस्ते इज अ डिफरेंट थिंग, इट्स टोटली डिफरेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन ट्रेडिशन। आई एम नॉट हियर टू एडवोकेट अबाउट हैंडशेक्स। हैंडशेक करने के लिए मैं आप लोग एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ, या कैसे करना है वो मैं बता नहीं रहा हूँ, या फिर आपको इस चीज़ के लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। बट इन प्रोफेशनल लाइफ्स यू नीड टू डू हैंडशेक्स। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, माइट बी सपोज आफ्टर अ ईयर आप लोग जब जॉब में जाएंगे उसके बाद यू नीड टू डू हैंडशेक्स। किस तरह से हैंडशेक करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सामने वाला बंदा आपको किस तरह से हैंडशेक दे रहा है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और जब सामने वाला बंदा आपको हैंडशेक दे रहा है उस टाइम पे व्हाट डज ही एक्चुअली मीन, उसके मन में क्या है, इट कैन एक्चुअली बी अंडरस्टूड इफ यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक्स ऑफ अ हैंडशेक। हैंडशेक जनरली किससे करते हैं? आप रोड पे चलते चलते किससे भी हैंडशेक कर देते हैं? डू यू जस्ट गिव हैंडशेक टू एनीवन एंड एवरीवन यू मीट अराउंड? नो, यू डू दिस इन पर्टिकुलर ओकेजन्स। माइट बी सपोज कोई प्रोफेशनल मीटिंग है, उसकी शुरुआत में जब सब लोग आते हैं, व्हेन दे मीट दे गिव हैंडशेक। आपके घर पे कोई आता है, जनरली माइट बी यू विल से नमस्ते एंड दे यू विल बो डाउन, और आप उसको बुलाते हैं। might be in other cultures they would give a handshake and they would call them in. सोशल गैदरिंग्स में, फंक्शंस में जाते हैं, वहाँ पे भी कभी कभी हैंडशेक करते हैं, जनरली शुरुआत में और डिपार्चर के वक्त। देन देयर इज समथिंग नोन एज पंपिंग। हाथ शेक करने के बाद आप इसको जो 2-3 बार उसको मूव करते हैं अप एंड डाउन, दैट इज व्हाट इज नोन एज द पंप। सो जनरली इट हैपेंस, दे से दैट अराउंड 5 times और माइट बी सपोज एट द मोस्ट 7 times तक करते हैं, डिपेंड्स ऑन द कल्चर पे डिपेंड करता है कि आप लोग जनरली सपोज हैंडशेक करके छोड़ देते हैं, या फिर माइट बी जस्ट 2 or 3 pumps यू गिव इन, माइट बी 5 और एट द मोस्ट 7। ओके,
हैंडशेक इज अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट एंड वेलकम। आप सामने वाले को जानते हैं, आप उसे वेलकम कर रहे हैं, आपके घर पे कोई आ रहा है तो यू गिव अ हैंडशेक, आप उसको ट्रस्ट करते हैं इसीलिए आप उसको हैंडशेक दे रहे हैं। माइट बी फर्स्ट टाइम सपोज आपके घर पे कुरियर वाला आता है तो उसको आप हैंडशेक देते हैं, नहीं, यू डोंट गिव इट, यू गिव टू समवन हु इज अ गेस्ट whom you know, whom you are welcoming into your house। इसीलिए कहीं पे भी नई जगह पे जाके किसी से फर्स्ट टाइम मिलने पे उसको सामने से हैंडशेक देने से पहले प्लीज़ ये 2 सवाल आप अपने आप से पूछ लीजिए कि एम आई वेलकम, मैं उसके घर पे, मैं उसके ऑफिस में, मैं उसकी जगह पे जा रहा हूँ तो मैं खुद को वेलकम कर लूँ। सेकेंड थिंग, जो बंदा है वो मुझसे मिलके खुश है या फिर मैं ज़बरदस्ती उसके एरिया के अंदर जा रहा हूँ। These 2 things are very important for us to ask ourselves before we give or you can say initiate a handshake। आप हैंडशेक शुरू करें उससे पहले ये 2 सवाल आप अपने आप से पूछ लीजिए। आप वहाँ जा रहे हैं, सामने वाले बंदे को सामने वाला बंदा आपको वेलकम करना चाहता है, एंड सेकेंड थिंग, वो आपसे मिलके खुश है या फिर आप ज़बरदस्ती अंदर घुसे जा रहे हैं। आस्क दीज 2 क्वेश्चंस बिफोर यू इनिशिएट अ हैंडशेक। जनरली इसीलिए हैंडशेक इनिशिएट कौन करता है? आप जब किसी के घर पे जाते हैं, द ओनर ऑफ द हाउस, द होस्ट इनिशिएट्स द हैंडशेक, द गेस्ट रेसिप्रोकेट्स बाय कंप्लीटिंग इट। इट गोज बैक टू द रोमन एज ऑल्सो। रोमन एज के अंदर, आई एम जस्ट हैविंग अ पिक्चर इन द नेक्स्ट स्लाइड, जो आपकी शर्ट की स्लीव होती है, जो कलाई जिसे कहते हैं हम लोग, रोमन ट्रेडिशन देयर यूज्ड टू बी प्रैक्टिस, जो कलाई के वहाँ पे वो लोग छोटे से चाकू जो होते हैं, इन सम मूवीज ऑल्सो यू वुड हैव सीन, कलाई के वहाँ पे छोटा सा चाकू वो लोग छुपा के रखते थे, और जब 2 एम्परर्स या फिर 2 ऑपोजिट ट्राइब्स के लोग मिलते थे तो वो लोग मिलते थे, यहाँ पे कभी कभी वो लोग चाकू छुपा के रखते थे। सो हाउ दे वुड ग्रीट द ओपोनेंट, वो लोग अपने ओपोनेंट्स को जब मिलते हैं उस टाइम पे कैसे मिलते हैं वो लोग? दे वुड मीट लाइक दिस। दिस इज नोन एज द रोमन हैंडशेक। ओके, और इन टेक्निकल टर्म्स इट इज नोन एज द अपर आर्म ग्रैब। ओके, इस तरह से भी आप जो है हैंडशेक कर सकते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड, सॉरी गाइस, दिस इज नॉट द अपर आर्म, दिस इज द लोअर आर्म। इसी तरह से अपर आर्म भी होता है और शोल्डर ग्रैब हैंडशेक भी होता है। सो वी वुड फील समटाइम्स दैट दिस इज समथिंग न्यू रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ। नो, इट्स नॉट सो। इट हैज सम इनर मीनिंग ऑल्सो, सम डिफेंसिव थिंग्स ऑल्सो इन दिस। उसने कोई हथियार छुपा के नहीं रखा है, वो जानने के लिए I am actually trying to check that he don't have any weapons, hidden weapons with him। चेक करने के लिए इस तरह से हैंडशेक करते हैं। ओके, नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडशेक। नाउ वी आर हैविंग some very good small, might be 5-10 seconds videos which will exactly tell you what are the different types of handshakes। और उसके बाद आपको बताऊंगा मैं किस तरह से, अगर सपोज कोई आपको एक डोमिनेंट हैंडशेक या फिर सपोज कोई आप पे हावी होना चाहता है, बिकॉज आई टोल्ड यू बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी नहीं, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जब आप आगे जाएंगे, एक प्रोफेशनल मीटिंग के अंदर, व्हेन यू आर मीटिंग अ कस्टमर, व्हेन यू आर मीटिंग अ क्लाइंट, अ बिजनेस एक्म्प्लिस, उस टाइम पे आप किस तरह से उनसे मिलते हैं वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है सामने वाला बंदा जो है ही इज़ ट्राइंग टू ओवर पावर यू और ही इज़ ट्राइंग टू डोमिनेट यू, किस तरह से जेंटली आप पूरी बाजी पलट सकते हैं, दैट ऑल्सो विल डिस्कस इन टूडेज लेक्चर विद अ स्मॉल वीडियो। ओके, सो रिमेनिंग पार्ट विल बी वेरी मच इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज, माइट बी आई थिंक अराउंड 10 minutes more and that's it. Okay, stay attentive for the next 10 minutes. Okay, the first type of handshake that we see commonly is the dominant one. डोमिनेंट वन का मतलब क्या होता है कि सपोज सामने वाला जो है आपको हैंडशेक दे रहा है, सामने वाले का एटीट्यूड है उसको आपके ऊपर डोमिनेंट होना है, उसको आपके ऊपर हावी होना है। ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग यू अंडर हिम, आपको उसके नीचे दबा के रखना चाहता है। जनरली दिस हैपन्स, आप लोग प्रोफेशनल मीटिंग्स देख लीजिए या फिर सपोज फर्स्ट टाइम 2 बिजनेसमैन मिल रहे हैं, 2 बड़े पॉलिटिशियंस मिल रहे हैं, एट दैट टाइम दीज थिंग्स कम इन टू अ लॉट ऑफ पिक्चर। ओके, तब हमको पता चलता है कि नहीं, ओके दिस इज एक्चुअली ट्रू, दिस थिंग कैन हैपन। Okay, so now we'll take the first one, that is the dominant type of handshake. Okay,
in dominant type of handshake, you need to see that the person on the right of the screen with the striped shirt and the armband, he is initiating the handshake and his hand is over the hand of the person on the left. स्क्रीन के राइट पे जो बंदा है वो हैंडशेक को इनिशिएट कर रहा है और साथ में उसका हाथ जो है पहले से ऊपर है. इसे कहते हैं कि वो अपना हाथ पहले से ऊपर रखना चाहता है. ही इज ट्राइंग टू डोमिनेट यू. जब सामने वाले का हाथ आपके ऊपर ऑलरेडी आ जाता है, देन यू आर फोर्स्ड टू कीप योर हैंड डाउन, और अकॉर्डिंग टू बॉडी लैंग्वेज वो आदमी जो है ही इज इन चार्ज ऑफ द सिचुएशन एंड माइट बी ही इज ट्राइंग टू ओवर पावर. ओके, जनरली विमेन जो होते हैं, जो लेडीज होते हैं, दे जनरली टेंड टू गिव अ सॉफ्ट हैंडशेक. Okay, soft handshake might be, it's soft means they don't give a very hard grip. They try to these are signs of submissiveness. थोड़ा submission दिखाते हैं, and they are also highlighting the feminine qualities. They don't try to show masculinity, strength and power and all those things. They try to highlight femininity. But for all the girls who are watching, it's very important to understand that in business, if you try to highlight more of your femininity, in that case it can be disastrous, because in that case men will give attention to your feminine qualities and not take you seriously for business. So it's very important that women who show high feminine signals in a serious business meeting lose credibility. Okay, like suppose if you are wearing might be very high heels, more of jewelry, more of aesthetic appearance, more of makeup, all these things, when you are trying to show more of your feminine qualities, at that time business people or men don't tend to take you seriously in terms of business. So women should take care of these things. Okay, so whenever you feel that someone is trying to dominate you, this is the most important thing. Their hand will come from the top and then you are actually, उसका हाथ ऊपर से आ रहा है, उसकी वजह से अगर आपको हैंड शेक करना है, your hand will gradually go to the bottom. ग्रेजुअली यू कैन सी राइट हैंड, जो फिगर में जो हमारे स्क्रीन पे जो राइट हैंड वाला बंदा है उसका हाथ पहले से ही ऊपर से आ रहा है. ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ विच लेफ्ट हैंड वाले येलो शर्ट वाले का हाथ ऑलरेडी नीचे है. सेकेंड वन इज द सबमिसिव हैंडशेक. सबमिसिव हैंडशेक का मतलब होता है कि आप पहले से ही सामने वाले के सबमिशन में चले जाते हैं. यू आर एक्चुअली सबमिटिंग योर सेल्फ. आप पहले से सामने वाले के अंडर में आ जाते हैं. आप पहले से ही अपने आप को उसके नीचे समझने लगते हैं. इस टाइप के हैंडशेक भी कई बार लोग देते हैं जिनका कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, या फिर सपोज इफ दे आर फीलिंग इनसिक्योर. ओके, ऐसे लोग जनरली सबमिसिव टाइप हैंडशेक देते हैं. हाउ डज दिस लुक लाइक, कैसा दिखता है सबमिसिव हैंडशेक, लेट्स सी. ओके, अगर आप लोगों से कुछ लोग भी समझ सकें सबमिसिव, जस्ट सी द हैंड दैट इज कमिंग फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन विद द आर्म बैंड. उसका हाथ पहले से ही नीचे है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द अदर पर्सन विल गिव हिम द dominant handshake. Okay, this is very important. उसका हाथ जो है सबमिसिव, आपका हाथ अगर पहले से ही नीचे से जा रहा है, इट मीन्स यू आर अ सबमिसिव पर्सनैलिटी. आप लोग जो है माइट बी इट्स सबमिसिव नेचर इज व्हाट इज बीइंग प्रोजेक्टेड देयर. ओके, और ऐसी सिचुएशन जनरली कब होती है? आप सपोज अपने किसी फ्रेंड को, और माइट बी इन प्रोफेशनल लाइफ, इफ यू आर ट्राइंग टू गिव एन अपॉलॉजी, ओके, उस टाइम पे जनरली यू यूज सच जेस्चर. आपका जो है पाम अप रहता है एंड यू आर ट्राइंग टू शो योर ओपोनेंट दैट ओके यू आर सबमिटिंग टू हिम. इज इट क्लियर? We need to understand one more thing. There are some exceptions, like people with arthritis, they might be because of their joints pain. Sometimes they tend to give handshake in this manner. Similarly, some other people like surgeons, musicians, artists, who are having very great importance of their arms as well as the fragility of the arms. वो अपने हाथों को they cannot afford to have any injury on their arms. As a result of which ऐसे लोग कई बार एकदम ढीला जो है हैंडशेक देते हैं. The handshake is very weak. So please understand, that is what I already said. Gestures या फिर जो भी आप बॉडी लैंग्वेज को आप पढ़ रहे हैं, प्लीज ट्राई टू रीड दैट इन अ क्लस्टर. सारी चीज़ों को हमेशा उसके ओवरऑल सारे बॉडी लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर पढ़ के देखिए. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आर्थराइटिस वाला बंदा इसीलिए हाथ ऐसे दे रहा है, एंड आप कहीं से देख के आपको लग रहा है अरे यार ये बंदा सबमिसिव हैंडशेक दे रहा है.
कोई सपोज एकदम ढीला हाथ दे रहा है तो आपको लगता है अरे यार ये तो बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस वाला लग रहा है. नो, बिकॉज ही माइट बी अ सर्जन, का एक म्यूजिशियन है, शायद कोई आर्टिस्ट है, जिसकी वजह से उसे अपने हाथ में इंजरी ना हो उसका ख्याल रखने के लिए वो अपना हाथ धीरे हल्के से दे रहा है. इट कैन ऑल्सो बी देयर. Okay, so again I am repeating this probably for the 4th or 5th time in the last 2 sessions. Always try to read the body language in a cluster. सारे बॉडी लैंग्वेजेस को एक साथ कलेक्ट कीजिए, उसके बाद देखिए कि what does it actually mean. Okay, last and the best, सबसे अच्छा वाला जो हैंडशेक होता है that is the handshake with the feeling of equality, neutrality. दोनों के हाथ जो है दे आर एग्जैक्टली वर्टिकल, किसी का हाथ ऊपर नहीं है, किसी का हाथ नीचे नहीं है, एंड दे आर एग्जैक्टली वर्टिकल. दिस गिव्स अ साइन ऑफ इक्वालिटी. कोई किसी से ऊपर नहीं है, कोई किसी से नीचे नहीं है, एंड दोनों के पाम एग्जैक्टली दे आर वर्टिकल एंड इट्स आइडेंटिकल फ्रॉम बोथ साइड्स. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. This is the handshake that is preferred from almost all of you guys. Okay, तो खास ध्यान रखिएगा कि ऐसी हैंडशेक जब भी आप लोग इनिशिएट करें, ट्राई टू गिव दिस काइंड ऑफ हैंडशेक इंस्टेड ऑफ डोमिनेंट और यू कैन से सबमिसिव. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, समटाइम्स यू कम टू नो दैट द अदर पर्सन इज गिविंग यू अ डोमिनेंट हैंडशेक. आपको पता पड़ रहा है कि सामने वाला बंदा जो है वो थोड़ा एक्चुअली आई टेल यू इन माई पर्सनल लाइफ आई हैव सीन सम पीपल, माइट बी सम फैमिली फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड सम इवन ऑफ कोलीग्स ऑल्सो आई हैव सीन व्हेनेवर दे आर कमिंग फॉर अ हैंडशेक, वो एक डोमिनेंट एटीट्यूड से ही आते हैं, उनका हाथ ऊपर से ही आता है, और जब उनका हाथ ऊपर से आ रहा है दैट टाइम यू कैन नॉट स्टॉप इट. आपको बाय डिफॉल्ट आपका हाथ जो है नीचे रखना पड़ेगा जस्ट टू एंश्योर दैट यू हैव अ प्रॉपर हैंडशेक. यू कैन नॉट अफोर्ड टू, उसका हाथ पकड़ के आप घुमा नहीं सकते, और फिर यू कैन नॉट मेक एनी अनकंफर्टेबल जेस्चर देयर एंड माइट बी यू कैन नॉट क्रिएट एन इश्यू आउट देयर. बट देयर इज अ सोल्यूशन टू दिस. वील सी 2 टेक्निक्स. 2 टेक्निक्स हम लोग आज ऐसी देखेंगे जिससे आप डोमिनेंट हैंडशेक करने वाले को यू कैन ओवरपावर देम और पासा पूरा पलट सकते हैं. इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट दिस डोमिनेंट इनटू इक्वालिटी, नॉर्मल हैंडशेक, or even you can make his dominant handshake as a submissive handshake. हो सकता है ये. Where I have read this at many places, but मुझे लगा कि ये चीज़ को थियरेटिकली ऑन पेपर बुक पे पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. I was not able to understand कि एक्चुअली किस तरह से होता है. Then I practiced a lot and finally could get it. Based on that, I have made a video. Please see what is happening. ओके, फर्स्ट होता है डबल हैंडर शेक. सामने वाले ने आपको डोमिनेंट हैंडशेक दिया और आपने जो है उस डोमिनेंट हैंडशेक को आपके लेफ्ट हैंड से यूज करके आपने उसके हैंड को स्ट्रेट कर दिया, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा. हिज डोमिनेंट हैंडशेक हैज बीन कन्वर्टेड टू अ न्यूट्रल हैंडशेक एंड बोथ योर हैंड्स आर ओवर हिज हैंड्स. आपके दोनों हाथ उसके हाथ के ऊपर हैं एंड नाउ यू आर इन टोटल कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन. पूरी सिचुएशन को आप कंट्रोल कर रहे हैं. अगेन द राइट पर्सन इज गिविंग अ डोमिनेंट हैंडशेक. उसका हैंडशेक जो है ऊपर आ गया आपके पास. इमेजिन कि आप लेफ्ट साइड के पर्सन है. जैसे ही उसका हाथ आता है, हाथ लेके आइए ग्रेजुअली एंड यू कनेक्ट दिस टू द अदर साइड. दोनों हाथों से पकड़ के जस्ट गिव हिम 1 or 2 पंप्स और हाथ हो गया उसका पूरा वर्टिकल. You get into the driver's seat. Please imagine this. Try to do this at your home today. अपने भाई बहन के साथ या might be with your family, anyone. Just try to do this once again at your homes. Dominant handshake आ रहा है सामने के साइड से. आपने dominant handshake को जो है रिसीव कर लिया. जैसे ही आपने उसको रिसीव कर लिया, आप अपना दूसरा हाथ जो आपका लेफ्ट हैंड है वो उसके हाथ के ऊपर रख दे दूसरे साइड पे एंड पंप करके उसके हाथ को पूरा सीधा कर देते हैं. दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक. प्यार से आप उसके डोमिनेंस को साइड में रख के सिचुएशन के कंट्रोल में आ सकते हैं. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस. सेकेंड, अगर ये जो मैंने बताया आसान रास्ता, सीधा रास्ता, टू कीप इट वेरी जेंटल, टू कीप इट वेरी नॉर्मल. नाउ इफ यू वांट टू लिटरली बीट हिम, अगर उसने जो डोमिनेंट हैंडशेक दिया है उसका अगर आपको लिटरल सेंस में करारा जवाब देना है, देन दिस इज अनदर टेक्निक. गाइस, इट इज़ नॉट ईजी. ये करना आसान नहीं है.
बिकॉज इसके अंदर जो स्टेपिंग्स हैं दे आर स्लाइटली ट्रिकी, लेकिन अगर आप ये कर सके आपको पता भी नहीं चलेगा सामने वाला बंदा डोमिनेंट हैंडशेक देने के बावजूद सबमिसिव हैंडशेक पोजीशन में आ जाएगा एंड यू वुड हैव टोटली वॉन द सिचुएशन। आप टोटली सिचुएशन को ओवरटर्न कर देंगे और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। जस्ट सी दिस एंड फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। द स्क्रीन इज एक्चुअली टिल्टेड, आई कुड नॉट चेंज इट, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं उसको टिल्ट नहीं कर पाया। देखिए राइट साइड में जो बंदा है उसने पहले पिछली बार की तरह डोमिनेंट हैंडशेक दिया। आपको शुरुआत में आपका जो लेफ्ट पाँव है उसको थोड़ा आगे लेना है। पहला जो स्टेप है आपका लेफ्ट पाँव आना चाहिए। जैसे ही उसने आपको हैंडशेक दिया आपका राइट पाँव उसके राइट पाँव के अक्रॉस में लेके जाइए और जैसे ही आप उसके पास जाएंगे आप उसके हाथ को थोड़ा पुश करेंगे एंड उसका डोमिनेंट जो स्टैंड है वो पूरा चेंज होके सबमिसिव में आ जाएगा। क्योंकि आप जब किसी का हाथ पीछे धक्का मारते हैं तो पीछे धक्का मारने के बाद वो अपने बेंट आर्म के साथ वो डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं रह पाएगा और उसको सबमिसिव पोजीशन में आना पड़ेगा। आई एम प्लेइंग दिस वीडियो वंस अगेन। सबसे पहले जो राइट पे जो बंदा है येलो शर्ट पे, उसका बॉडी का लैंग्वेज देखिए। उसने पहले अपना लेफ्ट पैर आगे रखा, डोमिनेंट हैंडशेक उसने लिया, उसने अपना राइट पाँव आगे करके ओपोनेंट के राइट पैर के अक्रॉस में रखा और जैसे ही वो अक्रॉस गया उसकी बॉडी आगे गई और उसने पूरे हैंडशेक को डोमिनेंट से न्यूट्रल कर लिया। इसी के साथ आप थोड़ा और प्रेस करेंगे, आप उसको सीधा इन्वर्ट करके सामने वाले को सबमिसिव पोजीशन पे भी ले जा सकते हैं। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। शुरुआत से आई एम जस्ट शोइंग द रिप्ले द थर्ड टाइम। सबसे पहले नोटिस कीजिएगा जब सामने वाले बंदे का हैंडशेक डोमिनेंट हैंडशेक आ रहा है, फर्स्ट यू नीड टू मूव योर लेफ्ट। आपका लेफ्ट पैर जो है थोड़ा आगे ले जाइए। एक्चुअली इट्स डिफिकल्ट बिकॉज आप आज जस्ट खड़े खड़े, अभी आप जहाँ पे बैठे हैं जस्ट खड़े खड़े ट्राई कीजिए। अगर आप लोग किसी को हैंडशेक देने जा रहे हैं, इफ़ यू आर मूविंग योर राइट हैंड से हैंडशेक देते हैं तो प्रोबेबली ऑलमोस्ट 99% सिचुएशंस में आपका राइट पाँव ही आगे जाएगा। ओके, सो जब सामने वाला बंदा आपको अप्रोच कर रहा है डोमिनेंट हैंडशेक के साथ, फर्स्ट टेक योर लेफ्ट लेग स्लाइटली फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग को थोड़ा आगे लीजिए। उसका हैंडशेक आ गया, जैसे ही उसका हैंडशेक आ गया आपने हाथ पकड़ा और फिर आपका जो राइट लेग है उसके पाँव के अक्रॉस में ले जाइए, जैसे आप उसको क्रॉस करके आगे जाने वाले हैं। ओके, ये जो बॉडी का स्टैंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको क्रॉस करके आगे जाने वाले हैं, उस तरह से आपका जो पाँव है उसको वैसे रखिए और जैसे ही आप दूसरा पाँव राइट लेग उसके राइट लेग के अक्रॉस में रखेंगे, इमीडिएटली उसका हाथ जो है पीछे जाएगा एंड व्हेन यू आर पुशिंग हिज हैंड बैक यू कैन चेंज द स्टैंस ऑफ योर पाम और उसका जो डोमिनेंट स्टाइल है वो न्यूट्रल पे भी लेके जा सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप उसको इमीडिएटली सबमिसिव मोड पे भी ले जा सकते हैं। इन दिस वीडियो आई हैव शोन जस्ट द न्यूट्रल पार्ट, डोमिनेंट को मैंने न्यूट्रल में कन्वर्ट कर दिया। थोड़ा और ऑटोमेटिकली जैसे उसका हाथ पीछे जा रहा है यू कैन ईजिली गेट इट डन टू द सबमिसिव मोड ऑल्सो। Okay, guys, I hope you understood this. This has been very difficult for me because इसको project करना in terms of theory or explanation was very difficult. I took today to make this video, especially to make you understand किस तरह से what should be your movements and how you have to actually do it. But I think most of you would have understood this. Okay, now हैंडशेक के अंदर जो आपको ख्याल रखना है कि ना हो, कई बार सिचुएशंस में जैसे मैंने बताया, सपोज आप एक मीटिंग में जा रहे हैं, कोई सोशल फंक्शनिंग है, जनरली यू आर माइट बी स्लाइटली नर्वस और समथिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका जो हाथ होता है एकदम ठंडा पड़ जाता है। सपोज राइट नाउ आपका कोई प्रेजेंटेशन हो, सपोज यू आर गोइंग फॉर अ वाइवा एग्जाम, सपोज यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, देखिएगा बाहर बैठे बैठे आपका जो हाथ होता है दैट बिकम्स वेरी कोल्ड। दैट्स अ नेचुरल थिंग। Another disorder or might be suppose say a small issue that happens with many people is known as hyperhidrosis. उनके हाथ में जो sweat glands होते हैं they start to sweat instantaneously. उसके अंदर sweating जो है बहुत ज़्यादा होने लगता है। As a result of which उनके हाथ हमेशा गीले रहते हैं। मेरे in school also had 2 friends जिनके हाथ में continuous sweating रहता था। They used to keep 2 set of handkerchiefs with them. एक वो लोग लिखते वक्त हाथ के नीचे रखते थे ताकि जो पेपर है वो गीला ना हो जाए। ओके, इन सिमिलर वे आप लोग जब भी सपोज किसी को हैंडशेक देते, इफ़ यू हैव दिस फीलिंग और माइट बी
मोस्ट ऑफ द टाइम इट डज हैपन। आपके हैंडशेक्स की वजह से माइट भी आप टेंशन में, नर्वसनेस में है, आपका हाथ जो है कई बार बहुत ठंडा हो जाता है, कई बार थोड़ा स्वेटिंग होने लगता है। अगर आप ऐसे हाथों से किसी को हैंडशेक देते हैं, दिस गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। हाथ अच्छे से पोंछ लीजिए, okay, and try to might be keep your hands in your pocket for some time, or ensure that you keep it slightly warm, not that cold. इमेजिन कि आपको सपोज कोई ऐसा हैंडशेक दे रहा है और उसका हाथ एकदम ऐसा था, कोई ठंडी आइसक्रीम पकड़ के उसने 2 बर्फ़ के पीस आपके हाथ में रख दिए। अगर ऐसा हैंडशेक कोई देगा आपको, वुड यू लाइक और वुड यू प्रेफर? नो, यू हैव टू डू दैट सेम थिंग। आप भी ऐसा किसी को ना करें, ध्यान रखिए। कई बार कई लोग मिलने के बाद हाथ को, जो मैंने बोला पंपिंग, देयर इज समथिंग नोन एज पंपिंग। पंपिंग का मतलब होता है हाथ शेक हैंड करने के बाद आप जो हाथ को ऊपर नीचे का जो जनरल जो मूवमेंट रहता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज पंपिंग। नाउ आई हैव सीन सम पीपल हु कीप ऑन पंपिंग। बस वो मिले, जब से मिले, और माइट भी मूवीज़ के अंदर सपोज हीरो हीरोइन जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं उस टाइम पे हाथ मिलने के बाद सपोज से वो लोग इस तरह से देखते ही रहते हैं। इन मूवीज दैट्स फाइन, बट इन रियल लाइफ प्लीज डोंट डू सच थिंग्स। 1 2 3 ठीक है, 5 ओके। In some cultures they even go for 7, but just imagine a situation कि आप 7 times you are pumping. Okay, this movement it's not that good. Okay, इतना अच्छा नहीं लगता, this movement doesn't look that good, so might be 3 to 5, that's enough, end it. दूसरी बात मैंने स्टार्टिंग में बताया था, please don't give a hard grip handshake. यहाँ पे आपको अपनी ताकत नहीं दिखानी है। सामने वाला बंदा अगर आउच करके चिल्ला दे तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला है, एंड एक्चुअली यू आर गोइंग टू हर्ट योर ओन पर्पस। सामने वाले बंदे के दिमाग में आपका बहुत ख़राब इंप्रेशन पड़ेगा, एंड विल गिव यू अ वेरी बैड इमेज। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। ओके, एक होता है जनरली सपोज से व्हेन मेल एंड फीमेल माइट बी सपोज फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और थोड़े दोनों नर्वस हो, एंड दैट टाइम इफ दे आर शेकिंग देयर हैंड्स, कभी कभी ऐसा होता है ठीक से हाथ नहीं मिलते, दे आर जस्ट मीटिंग समथिंग लाइक दिस, ओके, जस्ट फिंगर्स दे आर गेटिंग टच्ड। This is not a proper way to give a greeting or a handshake. Ensure that you make a proper web to web. ये जो आपके हाथ का ये पोर्शन होता है, this is what is known as a web. Okay, web to web मतलब आपके हाथ का ये जो वेब है और सामने वाले बंदे के हाथ का वेब, ये दोनों मिलना चाहिए. This is what is meant by a normal actual handshake. इस तरह सपोज मिला, it means it's not the proper one. It indicates a low confidence or nervousness or XYZ, whatever it is. Don't do that. ओके, सो हो सके तो फिंगर टिप ग्रीटिंग ना हो, वो भी खास ध्यान रखिए. कुछ लोग होते हैं जो देयर समथिंग कॉल्ड पर्सनल स्पेस. पर्सनल स्पेस में भी आप लोगों को ज़्यादा आइडिया ना हो, दैट एक इंटीमेट जोन होता है. मेरे ज़्यादा कोई नज़दीक आ जाए, आई डोंट फील कंफर्टेबल, आई फील स्लाइटली अनकंफर्टेबल. उस तरह से हर बंदे का एक पर्सनल जोन होता है. सो कुछ लोग दूसरों को अपने ज़्यादा नज़दीक लाना नहीं चाहते, तो दे एक्सटेंड देयर आर्म, हाथ को पूरा खोल देते हैं और फिर हैंडशेक करते हैं. और हैंडशेक मतलब हैंड एकदम हाथ सीधा रख के इतना शेक करते हैं और इतना थ्रस्ट देते हैं, मतलब दे ट्राई टू मूव द हैंड सो मच, सामने वाले के हाथ में इंजरी होने के भी चांस होते हैं. ऐसा भी होता है. सो डोंट डू दिस. कुछ लोग होते हैं हैंडशेक देके कई बार सामने वाले को अपनी तरफ खींच लेते हैं. डोंट डू दिस. जब भी आप हैंडशेक दे रहे हैं, योर हैंड शुड बी स्लाइटली बेंट. जो आपका हाथ होता है एल्बो से स्लाइटली बेंट होना चाहिए. इट शुड बी अ फर्म हैंडशेक. ओके, सो इन समरी ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज़ द समरी, एक नॉर्मल अच्छा हैंडशेक कैसा होना चाहिए, यू कैन जस्ट कीप दिस थिंग्स इन माइंड. ये चीज़ों को अपने दिमाग में रखिए एंड प्रोबेबली यू विल नेवर एवर गो रॉन्ग. ओके, पहला, डोंट ट्राई टू गिव अ डोमिनेंट हैंडशेक, डोंट गो फॉर अ सबमिसिव हैंडशेक, जस्ट गो फॉर अ नॉर्मल इक्वालिटी हैंडशेक. जो आपका पाम है उसको एकदम वर्टिकल रखिए, ना उसको ऊपर के साइड पे रखिए ना उसको नीचे के साइड पे रखिए. जस्ट कीप योर पाम एग्जैक्टली वर्टिकल सो दैट यू गिव अ नॉर्मल एंड यू कैन से इक्वल हैंडशेक. ओके, एंश्योर दैट यू डू दिस. ओके, एंड ट्राई टू बी ऑनेस्ट ऑल्सो. और जब भी आप बात कर रहे हैं, एज आई सेड, ट्राई टू यूज द ओपन हैंड जेस्चर. ओपन पाम को ओपन रखने की कोशिश कीजिए और साथ में हॉनेस्ट भी बनिए. ऐसा नहीं है कि हॉनेस्ट है ऐसा दिखाने की कोशिश कीजिए. ट्राई टू बी हॉनेस्ट ऑल्सो. दैट्स अ टोटली डिफरेंट पार्ट, बट इट्स इंपॉर्टेंट. ऐसा मत कहिए कल जाके कि विलियम सर ने बोला था कि हाथ खुले रखो. हाथ खुले रखने से लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ कि सच बोलिए भी और सामने वाले को बताइए भी कि मैं सच बोल रहा हूँ. ओके, एंड दिस थिंग्स हैपन नेचुरली. झूठ बोल के आप कितना भी हाथ खुला रखिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला. पीपल विल कम टू नो दैट यू आर लाइंग.
Okay, don't be dominant, don't be submissive, try to be neutral and equal. But I will tell you, if someone tries to outsmart you, देसी भाषा में, अगर सपोज से कोई आपके सामने ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है, ज़्यादा डोमिनेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज शो देम दिस ट्रिक्स. Either go for a double hander, else if you feel that no, you can beat him very well, in that case go for the left leg first. Make his dominant handshake into a submissive one. Let him come to know that you are also aware of handshakes and the different techniques. और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कई लोग पूछते हैं कि कितना हाथ को आपको हार्ड जो आपकी ग्रिप है या फिर कितना प्रेशर आपको हाथ में हैंडशेक के टाइम पे देना है. ऑलवेज रिमेंबर, सामने वाला बंदा जितना प्रेशर दे रहा है आपके हाथ पे, जस्ट ट्राई टू गिव अ रिवर्स ऑफ द सेम. जितना सामने वाला आपके हाथ को प्रेस कर रहा है, ट्राई टू डू द सेम विद अदर पर्सन. ओके, सामने वाला अगर इफ माइट बी अ लेडी और अ एज्ड पर्सन एंड दे आर नॉट प्रेसिंग वेरी हार्ड, कीप इट सॉफ्ट. इफ अ नॉर्मल पर्सन, कीप इट स्लाइटली मॉडरेट. और अगर लग रहा है थोड़ा फिजिकल पर्सन है, ट्राइंग टू माइट बी प्रेस स्लाइटली मोर, इन दैट केस ट्राई टू प्रेस स्लाइटली मोर. कंपटीशन में नहीं उतर जाना, वहाँ पे आर्म रेसलिंग नहीं करना है, वहाँ पे पंजा नहीं लड़ाना, बट ट्राई टू मैच टू द अदर पर्सन's grip. Okay, because that is very important. The next session on body language that we will be taking as part of this placement preparation program only, but that will be very important and that will be related to your smile and laughter. आपके फेस पे जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसके अंदर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्माइल एंड लाफ्टर एंड ऑल्सो योर आई सिग्नल्स. इसीलिए कहते हैं आंखें भी होती हैं दिल की जुबान, राइट? देयर इज अ सॉन्ग लाइक दैट. एंड एक्चुअली दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. योर इमोशंस कम आउट ऑफ योर आईज and people can read that eyes very well. Eye is also very important part of your body language, very much similar to your hands. So in the next session we will talk about smile and laughter and also your eye gestures and expressions and what all things you can make out from your eyes. Okay, so guys, I hope you all were very attentive. Thank you very much for being this attentive. And now if any of you are having some questions, we can just take that. These are some things that we have discussed today. The things that we have discussed today is something that you can easily practice at your home. It's nothing complicated. आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ, कजिन्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ या फिर विथ नेबर्स, यू कैन जस्ट प्रैक्टिस दिस हैंड शेकिंग टेक्निक्स. ट्राई टू डू इट. सामने वाला आपसे जब हाथ मिलाने आ रहा है उस टाइम पे हाउ ही इज़ अप्रोचिंग, उसके अप्रोच को देखिए एंड बेस्ड ऑन दैट ट्राई टू एनालाइज. ओके, ये इस टाइप का इंसान है, ओके, इज़ ही एक्चुअली दिस नेचर्ड पर्सन, उसका एटीट्यूड ऐसा है. ट्राई टू डू दिस एवरी डे. डेली लाइफ में इस चीज़ को कई सारी बार कीजिए ताकि आपको धीरे 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 लोगों के हैंडशेक्स को, उनके पाम जेस्चर्स को पढ़ना आ जाए. आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं, कान जो है सुन लेते हैं, आपको आंखों से उनके मुंह को देखने की ज़रूरत नहीं. जस्ट ट्राई टू रीड हिज बॉडी लैंग्वेज. उसके हाथ के मूवमेंट्स कैसे हैं, इज़ ही शोइंग हिज पाम, ये सारी चीज़ों को देखिए. बेस्ड ऑन दिस यू विल कम टू नो दैट वेदर दैट पर्सन इज़ रियली हॉनेस्ट और माइट बी ही इज़ प्रिटेंडिंग टू बी हॉनेस्ट. हॉनेस्ट होने का नाटक कर रहा है या फिर वो एक्चुअली हॉनेस्ट है. ओके, बेस्ड ऑन दिस यू विल कम टू नो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू एंश्योर कि आप लोग बॉडी लैंग्वेज जो है सीखें. एज आई ऑलरेडी सेड, वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? इट इज़ इम्पॉर्टेंट जस्ट बिकॉज जब आप लोगों को पता चलेगा कि इस चीज़ का मतलब ये है, तो आप लोग इंश्योर करेंगे कि जब आपको इंटरव्यूज़ में बैठे हुए हैं, व्हेन यू आर सिटिंग फॉर सम कैंपस प्लेसमेंट्स और जॉब इंटरव्यूज़, आप ऐसी कोई गलतियां ना करें. और साथ में ही जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके बॉडी लैंग्वेज को आप रीड कर पाए एंड माइट बी you'd be able to understand that whether you are going correct, whether you are making a good impression on the minds of the interviewer. All these things धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा. Okay, so this is what is the importance of this. And as I said, in the next lecture we would be talking about laughter or smile, as well as the eye signals and eye gestures, how to read them and what all things they denote. Okay. I think no questions as such, because today I think it was more of an informative session and some videos were there, so you could
understand the things better. So you can also try to practice this as I said, and if you have any doubts, just put in the comment section. Might be even after the session you can just put up in the comment section, and we'll try to resolve it in the next possible time. Okay, so guys, thank you very much. It was very nice with you all again this Saturday, and so hope to see you all again next Saturday with the next topic, and requesting you all to be safe at home, stay with your family, and ensure that you all are safe in this corona time. Okay, thank you.